Good afternoon, everyone. So, yep, I hope you are doing your practice. You are writing your blessings every day, and I just hope that you have covered your gratitude for all those three relationships that you have selected. So now we are going ahead with the new topic, and today's topic is health. So let me share my screen. We will do a bit of, reading of the chapter, and then we will proceed further with the assignment of it. Yep. So, magical health. Day 4 Magical Health. The greatest wealth is health. These are the words by Virgil, Roman poet. How many of you have actually heard that health is wealth? So, what have you understood with that? Health is wealth means what? That nothing is more important than health. Nothing is more important than health. Now, tell me, how do you take care of your health, or how much are you grateful for your good health? Do you do something for it? Do you ever do something for your good health in way that when you are doing fine, you are healthy, you are active? So do you feel thankful that time that I'm healthy? Or you think about your health or your body parts only when you fall ill, right? Only when you fall ill. Health is the most precious thing in life, and yet more than anything else, we can take our health for granted. For many of us, the only time we think of our health is when we lose it. Then the realization hits us. Without our health, we have nothing. So when they say that we take our health for granted, so what does that word for granted mean? We have discussed earlier also. For granted means not being grateful. And when we are not being grateful, so somewhere either we are complaining, right? So हम अपनी health को we think about the health only when we lose. If you all remember the COVID time when everyone was falling ill, right? Then everyone started taking care of themselves. हेल्थ के ऊपर चाहे वो हेल्दी खाना हुआ कुछ लाइक वट एवर इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए कुछ खाना हुआ और उस टाइम पे जो कोई खाने को कहता था सब लोग खा लेते थे ना बिकॉज उस टाइम पे सबको समझ में आ गया था कि हेल्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ना सो वी विल सी हाउ we are actually ignoring our health, we are not being grateful for health और उसके बाद एक्चुअली में हमें करना क्या है ठीक है There's an Italian proverb that speaks the truth about health for many of us. He who enjoys good health is rich, though he knows it not. While we rarely think of our health when we are well, you will have felt the truth of those words even when you had something minor like a cold or the flu and you were bedridden. When you're not well, all you want is to feel better, and nothing else matters other than having your health back again. तो जब भी कुछ हमें हल्का सा भी वी गेट फीवर वी गेट पेन वी गेट स्टमक एक वी गेट समथिंग लाइक दैट उस टाइम पे हाउ डू यू फील गुड दैट यू आर लाइंग ऑन द बेड no you just want to get the situation improved so that you could go to school or you go to your classes or you go to meet your friends or you watch tv right this is what happens even small cold if it continues for 2 3 days it disturbs you at a lot and you just feel कि मम्मा से ठीक करो right इसको ठीक करो कौन सी दवाई देनी है दो बट इसको ठीक करो isn't it so हमें हेल्थ कब समझ में आती है जब हमें कुछ होता है अदरवाइज हेल्थ तो वी टेक फॉर ग्रांटेड ओनली Health is a gift of life. It is something you receive and continue to receive each day. In addition to everything else we do to be healthy, we have to be grateful for our health
to continue to receive more health. Remember, whoever has gratitude for health will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for health, even what he or she has will be taken from him or her. Whoever has gratitude for health will be given more healthy. So the writer is saying that health is a gift of life. What does that mean? That the person who is healthy or who is having good health, that all the organs are working perfectly, he is actually rich, but no one consider it. And health is a gift that your life has given to you. And ये दिस इज समथिंग विच यू कीप ऑन रिसीविंग डेली. आपका हार्ट बीट डेली हो रहा है, डेली हो रहा है. आपको हार्ट आपसे परमिशन नहीं मांग रहा, वो ऑटोमेटिकली कर रहा है सब कुछ. आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली सारे वर्क कर रहा है. आपकी आईज कर रही हैं, योर हैंड्स आर डूइंग. आप चलते टाइम काउंट करते हो कितना चल देते हो आप, बट योर लेग्स आर सपोर्टिंग यू. हम ये सब कुछ कर रहे हैं और हमें करते जा रहे हैं. बट इफ वी आर नॉट ग्रेटफुल, देन ये जो हमें हेल्थ का जो लग्जरी है ना, दिस इज अ लग्जरी. कितने लोगों के पास आपको पता है कुछ भी नहीं होता है. यू कैन सी some people don't can't walk, some people can't hear, some people can't see, but we are blessed. And if we are not going to be grateful for it, so हम अपनी फ्यूचर हेल्थ को हम लोग रिस्क पे डाल रहे हैं. और ये जो उनका मेन मेन जो बेस है पूरा ग्रैटिट्यूड का, whosoever has gratitude. ग्रैटिट्यूड आज हम हेल्थ कर रहे हैं, तो जिसके पास हेल्थ का ग्रैटिट्यूड है तो उसको और हेल्थ अबंडेंस में मिलेगी, मतलब उसको फ्यूचर में भी गुड हेल्थ मिलती रहेगी. बट अगर someone is not grateful for health, so whatever he or she has will be taken away. मतलब उसका फ्यूचर जो है will be at risk when it comes to health. ठीक है. अब आपने सुना होगा बीच में, like there were many news कि young people had experienced challenges in heart and all. जिम जाते थे, healthy food खाते थे, still they suffered so much. क्यों? Because somewhere the gratitude was missing. नहीं तो healthy lifestyle, healthy खाना, healthy सब कुछ, regular body checkup, कुछ भी नहीं था और suddenly कुछ हो गया. So there was gratitude which was missing, right? So yeah, कि आप जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, आपने सुना होगा कि बहुत हेल्दी लोग होते थे, अच्छी लाइफस्टाइल जीते थे, बट स्टिल वो अपनी लाइफ को लूज कर गए, right? So this is very important. See what is it written. They says Septic. These are the words. All of it happens like magic. Gratitude is a vaccine, an antitoxin, and an antiseptic. These are the words by John Henry Jowett, Siberian preacher and writer. gratitude is vaccine, antitoxin and antiseptic. Means gratitude को उन्होंने किससे कंपेयर किया है? हम वैक्सीन क्यों लगाते हैं? कोई डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, अपनी बॉडी को सिक्योर करने के लिए. हम एंटीऑक्सीडेंट्स क्यों खाते हैं? ताकि हमारे अंदर एंटीबॉडीज बनती रहे, हमारे इम्यून सिस्टम हार्ट टाइप. एंटीसेप्टिक हम क्यों लगाते हैं? फॉर एग्जाम्पल जब हमें कट लग जाता है, कुछ लगाता है, तो हम लोग वहां पे एंटीसेप्टिक्स लगाते हैं कि हमें कोई इन्फेक्शन ना हो जाए. ना, अकेला ग्रेटिट्यूड ये सारे काम कर सकता है. मतलब वो आपको आपकी फ्यूचर हेल्थ को सिक्योर कर सकता है, वो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ा सकता है, और आपको कहीं पे कुछ चैलेंज आता है वो आपको ठीक भी कर सकता है. सो ग्रैटिट्यूड इज दैट पावरफुल एंड ग्रैटिट्यूड इज दैट मैजिकल. बट The degree that you're grateful for your health is the exact degree that your health will magically increase, and the degree that you're not grateful is the exact degree that your health will decrease. सो अगर यू वांट टू हैव थोड़ा सा एनर्जी इन योर बॉडी, you do little practice.
इफ यू वांट इतना एनर्जी हो जाए कि मेरा स्कूल का काम हो जाए, मैं स्कूल में एनर्जेटिक रहूं, तो इतना चाहिए, तो इतना ग्रेटिट्यूड करो। बट इफ यू वांट कि मैं पूरा वीक हेल्दी रहूं, मैं सारे गेम्स भी करूं, मैं सारे टेस्ट भी करूं, मैं घर पे एंजॉय भी करूं, वर्क भी करूं, सब कुछ करूं, देन अगर इतनी अबंडेंस में एनर्जी चाहिए, तो व्हाट वी हैव टू डू द ग्रैटिट्यूड इतना अबंडेंस में विथ फीलिंग्स। ओके, सो हेल्थ कितनी मैजिकल है, उसका डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि आप ग्रेटफुल कितने हो। Living with a decreased amount of health means your energy, vitality, immune system, clarity of thought, and every other function of your body and mind is weakened. नाउ कैसे पता चलेगा कि हम अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल हैं कि नहीं? उन्होंने बताया है, फॉर एग्जाम्पल आपका लो एनर्जी हो जाए, आप बहुत जल्दी थक जाते हो, या फिर आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा डाउन है, हल्का सा भी वेदर चेंज होता है, आपको कोल्ड कफ हो जाता है, आपको लर्न करने में थोड़ा सा टफ लगता है, कोई चीज मैम मैथ्स समझा रही है, कोई चीज समझा रही है, आपको समझने में टाइम लग रहा है, यू आर टेकिंग टाइम टू अंडरस्टैंड, ठीक है? और या फिर आपकी बॉडी का कोई पार्ट है जो थोड़ा सा वीक हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपका स्टमक है, यू आर हैविंग कॉन्स्टिपेशन, फॉर एग्जाम्पल आपका लेग एक होता है, आपको हैंड में शोल्डर में पेन होता है, आपको हेड में पेन होता है, ये जो सारे सिम्टम्स है, इट शोज कि आपकी हेल्थ थोड़ी डाउन है। और आपकी हेल्थ डाउन होने का मतलब क्या? कि आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो आप अपनी हेल्थ को पॉजिटिव देते हो, तो आप पॉजिटिविटी कम दे रहे हो। पॉजिटिविटी कम दे रहे हो तो मतलब क्या दे रहे हो? नेगेटिविटी। अब नेगेटिविटी आप डायरेक्टली नहीं दे रहे हो अपने आप को, इन अनइंटेंशनली दे रहे हो, क्योंकि आप ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहे हो, तो अनइंटेंशनली वो नेगेटिव पॉइंट जा रहा है, ठीक है? Being grateful for your health ensures that you will continue to receive more health to be grateful for, and at the same time, it eliminates stress and tension in your body and mind. Scientific research studies have shown that stress and tension are the root of many diseases. Studies have also revealed that people who practice gratitude heal faster and are likely to live 7 years longer. तो ये कितनी मजेदार बात है कि अगर आप अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल हो, तो आपकी बॉडी तो ठीक है, एनर्जेटिक होगी ही होगी, आपको कुछ होता है तो आपकी हीलिंग बहुत फास्ट हो जाएगी, बट लाइफ स्पैन भी इंक्रीज हो सकता है इफ यू आर ग्रेटफुल फॉर योर हेल्थ। इट इज दैट मैजिकल। You can see in the state of your health right now how grateful you have been. You should feel amazing every day. If you feel heavy and life feels like a real effort to get through, or if you don't feel younger than your age, then you're living with decreased health. सो जब सुबह उठने होता है, कैसा फीलिंग आता है? सुबह की ही बात करते हैं। ओ गॉड, सुबह हो गई फिर से, या वाओ सुबह हो गई है, चलो देखते हैं आज क्या होने वाला है, चलो आज स्कूल जाके देखेंगे आज क्या होने वाला है। किस एनर्जी से उठते हो तुम? किस एनर्जी के साथ अपने स्कूल जाते हो? वही ऐसे ड्रॉप शोल्डर करके स्कूल जाते हो कि स्कूल जाना पड़ रहा है, या फिर एंजॉय करके जाते हो कि आज स्कूल में क्या क्या होगा, मैं अपने फ्रेंड्स को मिलूंगी, मैं गेम्स प्ले करूंगी, मैं स्टडी करूंगी, मैं कुछ नया सीखूंगी, मैं टेस्ट दूंगी। जो एनर्जी लेवल है वो क्या है मॉर्निंग में, यू कैन वहां से यू कैन सी कि आपका बॉडी का क्या स्टेटस है, ठीक है? बट सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो सारा थिंग है, लो एनर्जी हो गया, लो इम्यूनिटी हो गया, बॉडी पार्ट्स का पेन हो गया, ये सब कुछ चेंज हो सकता है। क्यों? कैसे चेंज हो सकता है? क्योंकि now you are going to use some magical gratitude power. So do you promise to use it? Because it is your body. अगर आप ही अपनी बॉडी की केयर नहीं करोगे, तो कोई को और कैसे करेगा? ये आप बॉडी आपका खुद का घर है, अपने घर की ही तो ध्यान आप ही को रखना पड़ेगा ना, ठीक है? नाउ देर इज अ शॉर्ट मेडिटेशन, आई वॉन्ट यू टू सिट प्रॉपरली एंड क्लोज योर आईज, लेग्स क्रॉस करके बैठो। अब देखो कितनी एनर्जेटिक से बैठ रहे हो, फटाफट से बैठ रहे हो कि कोई हाय मेरे को नहीं बैठना, कैसा लग रहा है? This shows how energetic and how healthy you are. Now stand up and legs cross करके बैठो, eyes close करो, hands
फोल्ड करके, और मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ, यू हैव टू visualize it, you have to imagine, and then you have to follow it. Okay, chalo. Now close your eyes and take a deep breath. Legs cross करके बैठो, spine straight करके. Body should be straight, your back should be straight. Now take deep breath. Breathe in and breathe out. Breathe in, breathe out. Think about your legs and your feet. Touch your legs and your feet. एंड आप सोचो कि ये लेग्स और फीट आपको कितना हेल्प करते हैं. ये आपके बिगेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है. क्यों? क्योंकि ये आपको चलने में, खड़े होने में, बैठने में, बैलेंस, अपनी बॉडी का बैलेंस बना के रखने में, एक्सरसाइज करने में, डांस करने में, क्रिकेट खेलने में, फुटबॉल खेलने में, बैडमिंटन प्ले करने में, सब में, स्टेप्स स्टेयर्स को चढ़ने में, ठीक है, और सबसे बड़ी बात, वॉक करने में हेल्प करते हैं. आप कितना आसानी से अपने बेडरूम से किचन में चले जाते हो, किचन से आप ड्राइंग रूम में जाते हो, ड्राइंग रूम से आप बाहर जाना है चले जाते हो, स्टेशनरी शॉप से कुछ सामान लेके आना है आप लेके आ जाते हो, है ना. आपके ये जो लेग्स और आपके जो फीट हैं, वो आपको जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो वहां पे चलने में हेल्प करता है, एयर रेलवे स्टेशन पे हेल्प करता है. आप बीच पे जाते हो, आप बीच को एंजॉय कर पाते हो, हिल्स पे जाते हो तो ट्रैकिंग कर पाते हो. कितनी 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 फ्रीडम देता है आपको लाइफ को एंजॉय करने के लिए. से थैंक यू. बोलो थैंक यू. थैंक यू माई लेग्स एंड माई फीट. और दिल से बोलो कि सच्ची में, अगर आपको लग रहा है ना कि मुझे फीलिंग नहीं आ रही थैंक यू की, तो इमेजिन करो अगर ये लेग्स नहीं होते तो आप बेड पे ही बैठे रहते, कुछ नहीं कर पाते. कितने इंपॉर्टेंट है ये लेग्स और फीट हमारे. थैंक यू. थैंक यू भगवान जी मेरे लेग्स और मेरे फीट देने को. अब अपने आर्म्स और अपने हैंड्स के बारे में सोचो. सोचो सुबह से लेके अभी तक आपने कितनी चीजें अपने हैंड्स में होल्ड करी है. सुबह उठे हो, आपने ब्रश किया, फ्रेश हुए, आप नहाए, आपने अपनी यूनिफॉर्म पहनी, आप स्कूल बैग अपने शोल्डर पे कैरी करके गए हो, वहां पे आपने नोटबुक्स कैरी करी, अपने पेन से आपने यूज करके अपना वर्क किया, अपने हैंड्स और फिंगर्स को यूज करके आपने अपना लंच किया, वहां पे कंप्यूटर लैब पे गए तो कंप्यूटर करा आपने, कितना, वहां पे वाटर चाहिए था तो आपने वाटर ड्रिंक करा, मैम ने आपको बुलाया और उसको आपको बोला कि सर्कुलर क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो आपने वो करा, वापस आए बैग होल्ड करके, आपने चेंज किया, आपने लंच किया, अब आप यहाँ पे बैठे हो, आपके हाथ में नोटबुक है, पेन है, और आप नोट्स भी बना रहे हो. देखो अभी तक कितना कुछ कर लिया आपने. कितने इंपॉर्टेंट है ये हैंड्स. कितनी कितनी चीजें कर देते हो. और अगर ये हैंड्स नहीं होते तो शायद हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते. मम्मा प्लीज कपड़े दे दो, मम्मा कपड़े पहना दो. देखो आप कपड़े नहीं पहन पाते, आपको मम्मा मम्मा पापा करना पड़ता. सो इम्पोर्टेंट, कितना कितना इंडिपेंडेंट बनाते हैं ये हमारे हैंड्स सबको. से थैंक यू. से थैंक यू फॉर योर आर्म्स एंड योर हैंड्स, योर फिंगर्स. थैंक यू भगवान जी मेरे को ये सब कुछ देने के लिए. आई एम सो ब्लेस्ड. नाउ थिंक अबाउट योर सेंसेस. सबसे पहले सोचो अपनी टेस्ट सेंस को, अपने टंग को, जिसकी वजह से आप कितनी चीजें टेस्ट कर पाते हो. कितना भी आपने अपने बर्थडे सेलिब्रेट किया, कितनी सारी डिशेस आपने वहां पे इनवाइट अरेंज करी, और कितने मजे से सब लोगों ने आपने खाया. ये राइस भी था, पिज्जा भी था, नूडल्स भी थे, केक खाया, डेजर्ट खाया, आइसक्रीम खाई, कोल्ड ड्रिंक पी. कितना कुछ आपने टेस्ट किया, और आपने एक एक चीज को कैसे टेस्ट किया, फ्लेवर लिया था उसका. जब माउथ में अलग अलग डिशेस आ रहे थे आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे थे कि ये थोड़ा सा तीखा है, ये कम तीखा है. कितना मजा आता है ना ये सब चीजें जब हम लोग टेस्ट कर पाते हैं. ठंडा हमने पिया या हमने गर्म खाया, कितना मजा आता है. ठीक है. अब सोचो अगर यही सब चीजें खाते रहो पीते रहो और टेस्ट ही ना आए तो कैसे लगेगा.
जब कोल्ड हो जाता है तो टेस्ट नहीं आता ना, मन ही नहीं करता कुछ खाने पीने का, तब टेस्ट चला जाता है तो कितना हर चीज कितनी बोरिंग लगती है। से थैंक यू, थैंक यू भगवान जी मेरे अमेजिंग सेंस ऑफ टेस्ट के लिए। कितना 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 मैं अपनी लाइफ एंजॉय करती हूँ, गोलगप्पे खाने में, टिक्की खाने में, छोले भटूरे खाने में। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। नाउ थिंक ऑफ योर सेंस ऑफ स्मेल। परफ्यूम्स का शौक सबको होता है, आपको भी होगा। आप आके देखते हो ना, इसका ये परफ्यूम का सेंस स्मेल है, इसका ये है, इसकी ये फ्रेग्रेंस है। कितना डिफरेंशिएट कर पाते हो, 4 बॉटल्स है तो 4 बॉटल्स का आप डिफरेंशिएट कर पाते हो ना। डीओ की स्मेल आप जज कर पाते हो ना, कौन सा डीओ है, कौन सा फ्लावर का है। कई बार ये तो जब किचन में हलवा बन रहा होता है, कहते तो ना नीचे से ही, आज हलवा बनाए क्या। पिज्जा की स्मेल कैसे आती है, आती है ना। कितना मजा आता है जब बारिश होती है, तो बारिश में मड की गीली मिट्टी की स्मेल सूंघी है, कितना अच्छा लगता है ना। अब आपके स्कूल में जब जाते हो, वहां पे गार्डन में आपके सामने अगर गार्डनर ने वो ग्रास कट करी, तो उसकी स्मेल कितनी आती है, आती है ना। थैंक यू, से थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेंस ऑफ स्मेल, से थैंक यू, मुंह से बोलो थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू। ठीक है। नाउ थिंक अबाउट द वंडरफुल सेंस ऑफ टच। आपके पास ये सेंस है तो आप कितना आसानी से ठंडा और गर्म डिफरेंशिएट कर पाते हो ना। ये गर्म है तो मुझे नहीं हाथ लगाना है, ये ठंडा है तो ये बहुत ज्यादा ठंडा है। कौन सी कौन सी चीज शार्प है। टेडी बियर आप इंजॉय करते हो क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट है। कौन सी रफ है, कौन सी स्मूथ है, कितना इजीली आप चेक कर लेते हो ना। और जब आपको अब एश्योरेंस चाहिए मम्मा से, तो जाके हक करते हो ना मम्मा को। एक वो सिक्योरिटी फील आती है ना, कॉन्फिडेंस फील आता है कि हाँ मेरे को मम्मा है टेक केयर करने के लिए, पापा है टेक केयर करने के लिए। वो हक से कैसे आता है, क्योंकि आपका सेंस ऑफ टच अच्छा है। कोई आपका हैंडशेक करता है तो पता चलता है ना, हाँ कितना कॉन्फिडेंट है, आप चेक कर पाते हो ना। सो थैंक यू भगवान जी फॉर माई प्रेशियस सेंस ऑफ टच। थैंक यू। अब सोचो, ये जो मिराकल है हमारी आईज, जो हमें हमारे लव्ड वन को देखने में हेल्प करती है, हमारी फैमिली मेंबर्स को। आप खुद को आप मिरर में देख पाते हो हंसते हुए, आप बुक्स रीड कर पाते हो, आप टीवी देख पाते हो, सॉन्ग्स देख पाते हो, मूवीज देख पाते हो, ट्रिप्स पे जाते हो, वेकेशंस पे जाते हो तो कितना दूर दूर तक सीज देखते हो, ऊपर हाई माउंटेन देखते हो, हिल्स देखते हो, सनसेट देखते हो, सनराइज देखते हो। अगर कभी लगे ना कि इससे क्या फर्क पड़ रहा है, सिर्फ 1 आवर के लिए अपने आईज को ब्लाइंड फोल्ड करके देखो, कितना बेचैनी होती है। अप्रिशिएट योर लाइफ, अप्रिशिएट योर बॉडी, अप्रिशिएट योर आईज। से थैंक यू फॉर माई आईज। वाई? बिकॉज दे एनेबल मी टू सी एवरीथिंग। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। अपने कानों के बारे में सोचो। आज आप अपनी, अभी आपकी आईज क्लोज हैं बट आप मेरे को सुन पा रहे हो, आपको मैं जो बोल रही हूँ आप उसको फील कर पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो, फोन पे बात कर पाते हो, है ना, फोन है, अपने फेवरेट सॉन्ग सुन पाते हो, घर में सबकी बातें सुन पाते हो, फ्रेंड्स के साथ गप्पे मार पाते हो, कितना कुछ कर पाते हो अपने ईयर से। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू फॉर माई ईयर्स। वाई? बिकॉज दे हेल्प मी टू हियर। और अपना ब्रेन का थैंक यू भगवान जी, मेरा ब्रेन 1 डे में 75,000 थॉट्स आते हैं मेरे ब्रेन को। और मेरा ब्रेन किस तरीके से मेरी पूरी बॉडी को रेगुलेट करता है, हल्का सा भी कुछ हुआ फटाक से ब्रेन मैसेज भेज देता है। मैं पढ़ पा रही हूँ, मैं मैथ्स कर पा रही हूँ, मैं साइंस के प्रोजेक्ट समझ पा रही हूँ, मैं एसएसटी में डेट्स लर्न कर पा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू। मैं हिंदी के अनुलोम और विलोम भी कर पा रही हूँ और इंग्लिश के एडवर्ब भी कर पा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू भगवान जी मेरे ब्रेन के लिए। बिकॉज मेरे ब्रेन जैसा तो कोई कंप्यूटर, कोई टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में है ही नहीं, मेरा इतना स्ट्रांग ब्रेन है। थैंक यू भगवान जी फॉर माई ब्यूटीफुल ब्रेन, माई ब्यूटीफुल माइंड। थैंक यू। क्योंकि आज वो समझ भी पा रहा है ना, मेरा ब्रेन काम कर रहा है तभी मैं समझ पा रही हूँ ना कि ग्रेटिट्यूड क्या होता है। बॉडी में हमारे देखो ट्रिलियन सेल्स हैं। थैंक यू भगवान जी हर सेल के लिए, जो
मेरी एक एक सेल मेरी बॉडी को सस्टेन करने में हेल्प कर रहा है। मेरे वाइटल ऑर्गन्स, मेरा किडनी, मेरे लंग्स, मेरा यू नो लिवर हो गया, मेरा स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, मेरी स्पाइनल कॉर्ड हो गई। थैंक यू भगवान जी, हर 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 सिस्टम के लिए जो परफेक्टली काम कर रहा है और अपने आप ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। कोई मेरे कमांड की वेट थोड़ी कर रहा है, मैं बोलूंगी तब काम करेगा। वो कर रहा है, बस करे ही जा रहा है। मेरा हार्ट कितना 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 ब्यूटीफुल हार्ट है मेरा। मैं अम, वो बिना कुछ करे 24/7, मैं तो जब सो रही हूँ तभी भी मेरा हार्ट काम कर रहा है, बट ब्लड पंप कर रहा है, वो इंश्योर कर रहा है कि मेरे ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स्ड है और मेरे हर सेल को जा रहा है। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू मेरे पूरी पूरी स्ट्रांग बॉडी के लिए, थैंक यू हेल्दी हार्ट के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नाउ रब योर हैंड्स, रब योर हैंड्स, जोर से रब करो। देखो आप जब जोर से रब करोगे ना, हीट जनरेट होगी। ये जो हीट जनरेट होती है इसको एनर्जी बोलते हैं। तो देखो हम लोग तो एनर्जी क्रिएटर है, हम एनर्जी भी क्रिएट कर सकते हैं। जोर से रब करो, एनर्जी क्रिएट करो, उसको धीरे से अपनी आईज के ऊपर रखो, अपने फोरहेड पे रखो, फेस को करो, अपने हेड पे ऐसे करो जैसे आप अपने आप को ब्लेस कर रहे हो, अपने माइंड को ब्लेस कर रहे हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और साथ में इसका असाइनमेंट ये है कि एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर या कोई भी चार्ट शीट के ऊपर या आर्ट फाइल के एक पेज ले लेना कलर्ड, उस पे लिखो द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, और ये सामने लगा दो अपने आप। तो जितनी बारी आप आपको जितनी बारी दिखेगा ना, उतनी बारी यू हैव टू से थैंक यू फॉर योर बॉडी, से थैंक यू फॉर योर हेल्दी हार्ट। ये एक तरीके के रिमाइंडर्स के तरीके से आपको काम करेंगे कि आपको ग्रैटिट्यूड देना है। सो एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ डे, आज के दिन अगर हम आज की बात कर रहे हैं तो आज के दिन कम से कम 4 टाइम्स अ डे आप अपने इस कार्ड को देखो और बी ग्रेटफुल। कोई भी एक बॉडी पार्ट सोच लो, समझ लो, किसी के ऊपर फोकस कर लो और उस बॉडी पार्ट के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, जितना हम ग्रेटफुल होंगे हम उतना ही अपनी गुड हेल्थ को सस्टेन करेंगे और गुड हेल्थ हम फ्यूचर में इनवाइट करेंगे। ठीक है, नाउ टेक आउट योर नोटबुक्स फास्ट एंड राइट 5 gratitude for your eyes first. Language will be, I am truly grateful for my eyes. मैं अभी अपना रजिस्टर ले लेती हूँ आपके साथ, आई विल ऑल्सो राइट। I am truly grateful for my eyes because I am able to read the book today in the session. Thank you, thank you, thank you. I am truly grateful for my eyes because I can cook food on gas and make different
dishes daily. Thank you, thank you, thank you. I am truly grateful for my eyes because I can see my children growing into beautiful human being human beings. Thank you, thank you, thank you. I am truly grateful for my eyes because I can see the sun rising high in the sky. Thank you, thank you, thank you. I am truly grateful for my eyes because I can see abundance of colors around me. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे 5 कंप्लीट हो गए। ओके, तो नेक्स्ट बॉडी पार्ट लेते हैं। कौन सा लें बताओ? टेस्ट लें? टंग लेते हैं। चलो टेस्ट सेंस के ऊपर करते हैं। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई टेस्ट सेंस बिकॉज enjoyed my birthday cake very much. Thank you, thank you, thank you. I am truly grateful for my taste sense because I enjoyed eating काजू की बर्फी in the afternoon. Thank you, thank you, thank you. I am truly grateful for my taste sense because I relished the hot tea in the evening with garam pakoras. आप कैसे भी लिख सकते हो। अल्टीमेटली जो भी कर रहे हो यू शुड बी हैविंग द फीलिंग ऑफ थैंकफुलनेस। मेन चीज क्या है? फीलिंग होना। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई टेस्ट sense because आप सजेस्ट करो। I enjoy eating the tasty dishes and cherishing them. Which? I enjoy eating the tasty dishes and cherishing them. So tasty dishes to general हो गया ना, Like be pizza, specific. like So mention pizza if you like pizza। नहीं तो मैं पिज्जा का अलग लिखो, नूडल्स का अलग लिखो, हर चीज का देना अलग आएगा। सब एक ब्लैंकेट कवरेज में नहीं आएगा। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल for my taste sense because I enjoyed paneer tikka this Sunday afternoon. Thank you, thank you, thank you. I am truly grateful for my taste sense because I enjoy the tangy taste of lemon water. Thank you, thank you, thank you.
मेरे तो 5 हो गए। Except 10. ओके Okay. ओके, ठीक है। 5 हम नेक्स्ट लेते हैं अपने लेग्स का, ठीक है। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल for my legs because I can walk whole day from one room to another easily. Thank you, thank you, thank you. Second, I am truly grateful for my legs because I can wear my favorite jeans. Thank you, thank you, thank you. I am truly grateful for my legs because I can dance for 1 hour easily and I enjoy it. Thank you, thank you, thank you. I am truly grateful for my legs because I can drive the car from one place to another. आपने अपने अपनी लाइफ में जो डेली में आप करते हो वो एक्टिविटीज को लिखनी है। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई legs because I can climb stairs throughout the day. Thank you, thank you, thank you. Then 5, लास्ट 5 हम लिखते हैं। किसका लिखे बता? अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का लिखते हैं, स्टमक का। ओके, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई digestive system because it digests my dinner easily. Thank you, thank you, thank you. I am truly grateful for my digestive system. अगर किसी चीज को समझ में नहीं आए ना कि क्या लिखता है तो उसके फंक्शंस याद कर लो। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो भी फंक्शंस हैं, सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट फंक्शन। तो आई एम ग्रेटफुल for my digestive system because it converts my food into energy and help me do my work daily. You can be more specific whatever you have learned in school regarding the functions of digestive system. I am truly grateful for my digestive system because it absorbs all nutrients from my food. Thank you, thank you, thank you. I am truly grateful for my digestive system
because it separates the waste from my body. Separation हो जाता है. Okay. I am truly grateful for my digestive system because it बताओ ये तो आप. Because it helps me excrete properly. It helps in the excretion process. Thank you. Thank you. Thank you. हो गए 5. कंप्लीट करो जल्दी से. फिर एक लास्ट हम ब्रेन का करेंगे. डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन हो गया तो मॉर्निंग आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं ना. लास्ट हम 5 लिखेंगे अपने ब्रेन को लेके. आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई वंडरफुल. अब ब्रेन लिखो, माइंड लिखो, कुछ भी लिखो. फॉर माई वंडरफुल माइंड बिकॉज इट wakes me up with the sound of alarm. Thank you, thank you, thank you. I am truly grateful for my mind because it gives me lots of ideas to write gratitude for. And thank you. I am truly grateful for my mind because it understands the concept of gratitude and apply it in my life. Thank you, thank you, thank you. I am truly grateful for my mind because it helps me do calculation of money. Thank you, thank you, thank you. I am truly grateful for my mind because it helps me in understanding the jokes of Tarak. तारक मेहता का उल्टा चश्मा. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. देखो कि बैठे बैठे हमने 25 ग्रैटिट्यूड लिख लिए. नहीं पता चला ना कैसे लिखे. 25 ग्रैटिट्यूड लिखे हमने. थैंक यू, थैंक यू. और सबसे कैसे लिखे क्योंकि मेरा माइंड चल रहा था. राइट. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. एंड में लिखते हैं हम थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव. इस सेंटेंस का आपने एक चिट पे लिख के अपने सामने ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पे आपकी नजर बार बार पड़े और आप जितनी बारी नजर पड़े आप उतनी बारी से ग्रैटिट्यूड फॉर एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी. ओके. सो थैंक यू सो मच फॉर your listening and try to
join on time on sessions. Thank you so much.